all. Welcome to our session once again. Welcome to the session of English grammar. Welcome to the session of language. Welcome to the session of knowledge of language. So it's a very prompt appearance of all of you. We had kept a feasible time for everyone because evening time is comfortable for most of us. So it's good that Borders Academy not only takes care of your knowledge updation but also gives you a lot of flexibility in timing so that you can complete your other course, you can complete your daily routine, you can complete your job in case if you are in, and thereafter you can start with your work. Thereafter you can have your studies going on, you can even attend the classes, right? And when the classes are related to English, that's something very, very important because English communication as well as the writing skills of English both are important from the perspective of our future, everyone's future. It could be either of the fields. You will always find that English is most essential. You will always find that English is an inevitable part and it has to be there by default. It has to be there. If you don't have English with your fluency, if you don't have your command on the language, then it becomes tough. Whether Shubham Borde is there in the class, Shubham Borde, are you there in the class? If yes, kindly give your greetings so that I get to know that you are there in the class. I repeat, Shubham Borde, are you there, beta? There was actually a reminder. Yes, child. Actually, Sachin sir wanted to know whether you are there in the class. So, great. Welcome to Shubham Borde as well. Okay. Now, as I said, it becomes difficult for us if we don't remember. Or if we don't have good knowledge about English, it becomes difficult for us to survive in the society. And so, to keep up our knowledge of English, here we are with certain important chapters. Like previously we had done subject verb agreement. Now we are moving towards tense. These are very, very important chapters, children, from the point of view of English grammar. And one should always remember that these chapters cannot be left. You cannot leave them unattended or unstudied. It has to be. These chapters must be learned by you. They must be known to you. They must be practiced by you. Without its practice, without its knowledge, there is no usage or there is no proper appropriate application of language, either in the form of writing skill or in the form of communication. So always remember that grammar, when you talk about English grammar, tenses is important and subject verb agreement indirectly you can say is a part of tenses only. Okay, so let's move on. Now moving with our first slide, or basically I would like to give you some inputs on that. We have started with tense. One thing I would like to specifically
pinpoint this very important clue. It is not tenses. It's not tenses. It's tense. It's singular. It's not plural. Now, because we have 3 tense with us, or the tense is divided into 3 parts, don't call it as tenses, please. Don't make it as tenses. It is tense. Just like in Marathi you say card, in Hindi we say kaal. Do we say kade or kale? No, right? Why? Because we can't make it plural. Tense means time period. The period of performing action, the time period in which the action is being performed is known as tense. So don't make it tenses. It's not tenses, it's only tense. One thing. Because it is a phase. It's a time period, it's a phase. It is not talking about 3 phases. It is further divided into 3 subtypes to understand this one phase. To understand what is tense, we have a further bifurcation into 3 aspects of one word, that is tense. तो टेंस को पढ़ने के लिए हम 3 हिस्सों में उसे पढ़ते हैं, क्योंकि वो 3 हिस्सों में एग्जिस्ट करता है। टेंस हमारी दुनिया में प्रैक्टिकली कैसे एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट्स इन 3 फॉर्म्स। इट एग्जिस्ट्स इन 3 फॉर्म्स। 3 अलग अलग टेंस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसके फॉर्म्स हैं, वो उसके फेजेस है, वो उसके एस्पेक्ट्स है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो उनको अलग अलग मत लीजिए ये सोचकर के टेंसेस है, आई हैव स्टडीड 3 टेंसेस। नहीं, 3 अलग अलग टेंसेस नहीं है, टेंस एक ही है। टेंस मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। उसको नाम खाली टेंस दिया हुआ है, उसका मतलब होता है टाइम पीरियड या फिर एक फेज इन विच द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म। और उसे पढ़ने के लिए हमें 3 अलग अलग वेरिएशन में जाना पड़ता है, क्योंकि वो 3 वेरिएशंस में एग्जिस्ट करता है। वो कल में एग्जिस्ट करता है, वो आज में एग्जिस्ट करता है, आने वाले कल में भी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हमें 3 अलग अलग वेरिएशंस उसके पढ़ने पड़ते हैं। बट वो 3 अलग अलग टेंसेस नहीं है, वो सिर्फ उसके 3 वेरिएशन है। टेंस एक ही है। There is only one thing in the world that is known as tense. अब आप बोलोगे मैम वो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। वो 3 टेंस होते हैं, इसलिए हमने उसको ऐसे लगाया। ऐसा हम लोग मोस्टली कहाँ पर पढ़ते हैं? इन साइंस वी हैव समथिंग और उसके 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एंड देन सो वी टेक इट एज प्लूरल। जस्ट लाइक यू से फर्नीचर, तो सोफा भी फर्नीचर है, चेयर भी फर्नीचर है, टेबल भी फर्नीचर है। सोफा अगर है तो उसको भी हम फर्नीचर कहेंगे, और फिर इन ऑल हम उनको मिलाकर फर्नीचर्स नहीं बोलते हैं, फर्नीचर ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि फर्नीचर इज ओनली वन थिंग। उसे समझने के लिए वी हैव वैरायटी इन फ्रंट ऑफ अस, वी हैव वेरिएशंस। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई किया गया है, वही चीज़ यहाँ पर आप एप्लीकेशन कीजिए लॉजिक का। टेंस को समझने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं। वो 3 फॉर्म्स का इस्तेमाल करके हम टेंस को समझते हैं। टेंस एक ही चीज़ है, टेंस अलग अलग नहीं है, बट हम उसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो टेंस के ही वेरिएशंस हैं। ओके, जैसे हम फर्नीचर के लिए कहते हैं इंडोर फर्नीचर्स, और इंडोर फर्नीचर, आउटडोर फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, होम डेकोर फर्नीचर, राइट। तो हम वो वेरिएशंस को पढ़ते समय पे उनको फर्नीचर का ही डोमेन देते हैं, दे फॉल अंडर द सेम डोमेन ऑफ फर्नीचर। वैसे ही टेंस के अंडर ये डोमेन है, इस डोमेन के अंदर ही 3 अलग अलग वेरिएशंस हैं बस।
इसीलिए उनको जो नाम है वो टेंस आखिर में उनको दिया गया है, बिकॉज दे फॉल अंडर द सेम डोमेन। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप टेंस को एस लगा दोगे एंड यू विल मेक इट प्लूरल, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ मुझे कल पता लगी कि पीपल हैव दिस टाइप ऑफ थॉट ऑल्सो। तो इस चीज़ को याद रखिए, वो कभी भी टेंसेस नहीं होगा, वो हमेशा टेंस रहेगा। इवन कुछ ग्रामर बुक्स में आपको दिखेगा टेंसेस, इवन कुछ फैकल्टीज से आपको सुनने में मिलेगा टेंसेस, बट यूज अ लॉजिक। टेंसेस, कितने सारे टेंसेस हैं हमारे पास? टेंस का मतलब होता है टाइम पीरियड। कितने टाइम पीरियड्स हैं? टाइम पीरियड्स अलग अलग नहीं है, टाइम पीरियड एक ही है, बस कभी वो टाइम पीरियड पास्ट में था, कभी प्रेजेंट में है और कभी फ्यूचर में होगा। टाइम पीरियड सेम है, फेज सेम है, सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस अलग अलग टाइम पे आ जाता है, तो हम उसको वेरिएशन कहते हैं। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज नॉट गोइंग टू बी क्वेश्चन इन योर पेपर एवर। आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव पेपर कर लीजिए, एग्जाम कर लीजिए अटेम्प्ट, उसमें कभी आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं ये सिर्फ आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ये मिसकंसेप्शन कल पता चला कि बहुत सारे लोग इस मिसकंसेप्शन से पीड़ित हैं। They are a victim of this type of misconception. Kindly get yourself cleared. There is nothing named as tenses. There is only tense. Because it is studied into 3 different variations, don't make it plural. Simple. I hope I am clear. If I am clear, give me a thumbs up or say yes. तब तक मैं I'll have a sip of water. मूविंग अहेड, पहले कल का रिकैप करते हैं। कल जो हम लोगों ने चैप्टर किया था अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके कुछ जो थे क्वेश्चंस विच वर लेफ्ट टू बी कंप्लीटेड। आई होप यू माइट हैव कंप्लीटेड इट। आपने उसको कंप्लीट किया होगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। आई थिंक द आंसर इज येस, येस यू हैव डन इट। हैव यू ऑल? और अगर किया है तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई क्वेरीज आई होगी, क्योंकि क्वेरी उसी को आती है जो काम करता है ना। ये भी होता है कि मेनी टाइम्स इट डज हैपन दैट वी से सो एंड सो पर्सन हैज डन अ मिस्टेक। अरे वो बंदे ने काम किया इसीलिए उससे गलती हुई, अगर वो काम ही नहीं करता तो गलती भी नहीं होती थी ना। सो दैट इज ऑप्टिमिज्म, टेक इट पॉजिटिवली। सो इफ समवन ब्लेम्स यू, यू हैव डन अ मिस्टेक, सो डोंट डिमोरलाइज योरसेल्फ। यू शुड से टू योरसेल्फ, ओके एटलीस्ट आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ काम किया, कोशिश की, तभी मुझसे गलती हुई ना। अगर मैं कोशिश ही नहीं करता या नहीं करती तो क्या गलती होना पॉसिबल था? नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक आई हैव लर्न समथिंग फॉर माई फ्यूचर। व्हाट आर मिस्टेक्स एक्चुअली? मिस्टेक्स आर द आउटकम्स ऑफ, और आई एम सॉरी, व्हाट आर एक्सपीरियंसेस? एक्सपीरियंसेस आर द आउटकम्स ऑफ मिस्टेक्स। एक्सपीरियंस क्या होता है? लोग बोलते हैं ना, ही इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, या मुझे इतना एक्सपीरियंस है। व्हाट डू यू मीन? The person has committed n number of mistakes and so the person has learned out of those mistakes, that is known as experience. तो अगर कोई बंदा बोलता है कि आई एम विद गुड एक्सपीरियंस, तो ये मत समझिए कि वो बंदा परफेक्ट है, ये समझिए कि उस बंदे ने भी बड़ी गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ टाइम में, अपनी पूरी जर्नी में, और उन गलतियों से उसने बहुत कुछ सीखा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपीरियंस पर्सन एंड अस इज, वो बंदे ने बहुत सारी गलती करके सीख लिया, एंड सो ही इज एक्सपीरियंस्ड, सीख चुका है वो, समझ चुका है वो, एंड वी आर स्टिल अ फ्रेशर। हमें लगता है कि हम अभी भी फ्रेशर है क्योंकि अभी हमने इतनी गलतियाँ की नहीं है, और इसीलिए हमारा अभी वो जर्नी एक्सपीरियंस का बाकी है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। तो कल के जो क्वेश्चंस थे उसमें कुछ डाउट्स है, कुछ समथिंग यू वांट टू गेट क्लियर, तो प्लीज़ बताइए। इफ देयर इज समथिंग विच यू वांट टू गेट क्लियरेंस ऑन, प्लीज टेल मी। नो क्लियरेंस? शैल वी मूव टुवर्ड्स टुडेज चैप्टर देन? आज की चैप्टर की तरफ चले, टेंस की तरफ। ओके, यहाँ से कोई हाँ या ना कुछ भी नहीं आया? हाँ, ओके, आ गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। टेंस, मैंने आपको बता दिया टेंस का मतलब होता है टाइम पीरियड। टेंस को पढ़ने के लिए हमारे पास
तीन वेरिएशंस हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट का मतलब इट इज ऑलरेडी गॉन, प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। इस मिनट से पहले, इस मिनट से लेते हुए, जो अभी 1 मिनट मेरा गुजरा है, उससे लेते हुए तो जब धरती का इवोल्यूशन हुआ था तब से लेके तो 1 मिनट पहले तक एवरीथिंग इज पास्ट। दिस करंट मिनट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू इज प्रेजेंट। After this 1 minute, the next minute which will begin till the time Earth is existing is future. तो कई बार बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि यार एग्जैक्टली पास्ट मतलब कौन सा पास्ट, प्रेजेंट मतलब कौन सा प्रेजेंट, फ्यूचर मतलब एग्जैक्टली कल सुबह वाला फ्यूचर है या आज शाम का फ्यूचर है, आज रात का फ्यूचर है, फ्यूचर कौन सा है। तो ये टाइम पीरियड इस तरीके से समझ लीजिए। अब ये हुआ ऑन अ ब्रॉडर स्केल, दिस इज ऑन अ वेरी वाइडर स्केल। हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिफाइन कर दिया। अब ये तीन वेरिएशंस में जब हमें टाइम पीरियड पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द टाइम पीरियड। द इम्पोर्टेंस इज ऑफ वर्क। वर्क का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा टाइम पीरियड में। उतने टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, उतने टाइम पीरियड में एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उतने टाइम पीरियड में काम हो रहा है, उतने टाइम पीरियड में हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, उतने टाइम पीरियड में हम प्रोडक्शन कुछ तो भी करके दे रहे हैं, कुछ आउटपुट दिया जा रहा है, सम वर्क इज डन, एनर्जी इज बीन यूटिलाइज्ड। तो टाइम पीरियड और वर्क, इन दोनों का पूरा गेम है, दैट इज नोन एज टेंस। सो टेंस हैज टू डील ओनली विद दीज टू थिंग्स। इसमें सब्जेक्ट का कोई डीलिंग नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट का कोई डीलिंग नहीं है, इट ओनली हैज टू डील विद टू थिंग्स, दैट इज वर्क एंड सेकेंड इज टाइम पीरियड। वर्क मतलब एक्शन, टाइम पीरियड मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सिंपल। एक्शन पास्ट में हुआ है, एक्शन प्रेजेंट में हुआ है, या एक्शन फ्यूचर में हुआ है, बस सिर्फ इतना ही हमें डील करना है टेंस। और अगर इतना हमारे समझ में आ जाता है, हमें क्लियर हो जाता है दिमाग में, आर वर्क गेट्स कंप्लीटेड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब जब हमें वर्क पढ़ना है तो इससे पहले कि हम लोग इन तीन वेरिएशंस की तरफ जाएं और उसके अंदर के माइन्यूट एरियाज को स्टडी करें, लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन व्हाट इज अ वर्ब एंड इन व्हाट फॉर्म्स इज द वर्ब गिवन। ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था, तो मैं अब आपको इसका एक रिवीजन दे रही हूँ। दीज आर 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ओके, V1 को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, V2 को कहते हैं सिंपल पास्ट, V3 इज पास्ट पार्टिसिपल एंड V4 इज प्रेजेंट पार्टिसिपल और इज पॉपुलरली नोन एज कंटिन्यूअस। Now let's have verbs. You can give me verb if you want. I will also put up drive, then cut, then cook. आप कोई verb देना चाहेंगे? कोई verb देना चाहेगा मुझे? run. इसके अलावा run हमारा पिछली बार भी हो चुका है। ऐसा कोई verb जो अभी तक हमने डील नहीं किया है क्लास में? sleep. शायद sleep किया नहीं है। ओके, तो लेट अस हैव ड्राइव का V2 मतलब के सिंपल पास्ट क्या होगा उसका? ड्रोव। उसी का ड्राइव का ही पास्ट पार्टिसिपल होगा ड्रिवन। ड्राइव का ही कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस इज जस्ट लाइक द मीनिंग ऑफ हिज वर्ड। उसका जो मीनिंग है कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? ऑन गोइंग, चल रहा है, राइट? कंटिन्यूअस अगर मैं बोलूँ कंटिन्यू स्पीकिंग मतलब के बोलते जाओ। अगर मैं बोलूँ द व्हीकल इज कंटिन्यूइंग टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन मतलब व्हीकल चल रही है, राइट? तो इस वर्ड का मतलब क्या है? कंटिन्यू का मतलब ही होता है चलते जाना। तो यहाँ पे वो जो चीज़ चलती जा रही है उसको दिखाने के लिए हमें ING लगाना पड़ता है। सो इट्स ड्राइविंग, ड्राइविंग, कमिंग, गोइंग, स्लीपिंग, ईटिंग, रनिंग, हिटिंग, किकिंग, बीटिंग, बहुत सारे, ठीक है? सो ऑल दीज ING विल टेल अस कि
यही होगा, कट का कटेड कटेड नहीं होता है, इट इज कट 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 एंड देन उसका V3 हो जाएगा कटिंग। नाउ ये शायद मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था दैट इफ यू हैव द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बीइंग इंक्रीज्ड समवेयर, अगर आपको ऐसा कोई फॉर्म दिख रहा है वर्ब फॉर्म जहाँ पर इनिशियली एक ही टी था लेकिन बाद में 2 टी हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ है? इफ यू हैव दिस क्वेश्चन रेज्ड इन योर माइंड, लेट मी टेल यू। यस करेक्ट अभिषेक, आपने सही कहा। इसके पीछे एक सिंपल सा रूल है ग्रामर का। द रूल सेज 2 चीज़ें होती हैं ग्रामर में। मैंने पहले एक्सप्लेन किया है क्या? ये पॉइंट एक्सप्लेन किया है क्या मैंने पहले कभी? हैव आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट? ये डबल क्यों हो गए? हैव आई एवर एक्सप्लेन इट टू यू? ओके, आई डोंट नो, ओके, प्रोबेबली नो प्रॉब्लम। सो देयर इज अ रूल। 2 चीज़ें होती है इंग्लिश अल्फाबेट्स में। अल्फाबेट्स कितने हैं हमारे इंग्लिश में? अल्फाबेट्स कितने हैं इंग्लिश में? अल्फाबेट्स मतलब लेटर्स कितने हैं? हाउ मेनी डू वी हैव? 26। 26 जो है उसमें से 5 जो है वो है वॉवल्स। क्या है वो? वॉवल्स। AEIOU आर वॉवल्स। तो 5 हमारे वॉवल्स हैं। इन 5 वॉवल्स को छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद बचे हमारे 21। इनको कहा जाता है कॉन्सोनेंट। I have messed up everything, I'm sorry, but then this is known as consonant. Wait, I'll just clear this up so that it becomes visible. Yes, तो हमारे पास 2 एरियाज है अल्फाबेट्स में। एक होता है वॉवल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। 5 होते हैं वॉवल्स, वो 5 निकाल दो अगर वॉवल्स, तो बचे 21 लेटर्स जो हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। So this rule says that if there is a combination of a vowel followed by a consonant, consonant should be at the end, completely at the end, उसके बाद कुछ भी होना चाहिए। एक ये पेयरिंग होनी चाहिए। पेयरिंग कैसी? वो भी आखिरी में, एट द बॉटम। क्या पेयरिंग होनी चाहिए? एक वॉवल और उसके बाद कॉन्सोनेंट। अगर इस तरीके की पेयरिंग है, then while changing the form of the word, इस फॉर्म को चेंज होते समय पे the number of the consonant gets doubled, जो यहाँ हुआ। This is a rule in English. इसीलिए आपको कई सारे जैसे swim है, then you have flat. Flat is not a verb, but it still follows the same rule. ये सिर्फ वर्ब्स के लिए नहीं है, इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। जिसमें भी ये रूल एप्लीकेबल है, जिसमें भी ये रूल फॉलोड है, उसमें कॉन्सोनेंट का नंबर डबल होना ही है। इज दैट क्लियर? ये रूल सबको समझ में आया क्या? हमेशा याद रखिए। एंड आई एम श्योर आपने कभी ना कभी एक बार तो भी सोचा होगा लाइफ में, जब भी आपने ऐसे नंबर डबल होते हुए देखा होगा तो सोचते होंगे यार इसी का नंबर क्यों डबल होता है? So this is the reason behind. Now here what you see is there is a vowel over here, then you have a consonant, again there is a vowel. So this does not satisfy the condition. ये वो condition satisfy नहीं करता है, वो rule यहाँ पे आपका apply नहीं होगा। Just like you have right, the word right, इसमें क्या है? vowel, consonant, vowel। ये नहीं चाहिए अपने को, हमें क्या चाहिए? vowel और consonant चाहिए। उसके आगे vowel आया तो खत्म, then it will not satisfy the condition and so it cannot, the rule cannot be applicable here। इसीलिए जब इसका फॉर्म बदलेगा, ing में जाएगा, so what would be the spelling? ये भी मुझे लगता है कई सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा। बचपन में ऑलमोस्ट हर एक ने ये गलती की है ना? सबने की होगी ये गलती। डबल टी लिखा ही होगा राइटिंग में, WRITTING किया है। कितने लोगों ने किया है? हाँ बोलिए, चलिए जल्दी जल्दी। यस यस, अरे खुशी खुशी हाँ बोलो, क्योंकि दिस रूल इज नॉट टॉट टू अस एट दैट टाइम।
mistake. मैंने भी की थी when I was in class 1 और 2, तब भी मैंने ये गलती की थी, मैंने भी की थी. Everyone does it. क्यों? क्योंकि this is a default mechanism in the brain. एक बार हमने डबल टी देख लिया, हर बार जब लास्ट में टी आ रहा है तो उसको डबल कर दिया जाता है. Why? Because we take it into consideration कि भैया हर बार आखिरी में टी आया ना तो डबल कर देना है. और उस समय पे ये रूल कोई हमें समझाता नहीं. तो अब ये इसीलिए दिस इज द रीजन यहाँ पर डबल टी नहीं आता है. और दिस इज द रीजन बहुत सारे बच्चे उसमें डबल टी डालते हैं क्योंकि उनको ये रूल पता नहीं. तो हमेशा याद रखिए हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड. वॉवल फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, वॉवल फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट. बस उसमें ना बीच में कुछ और आना चाहिए, ना कॉन्सोनेंट के बाद कुछ और आना चाहिए. नथिंग नथिंग नथिंग. इट हैज टू बी वेरी वेरी सिंपल. इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. कुक का क्या होगा? और ये हो जाएगा कुकिंग. अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन यहाँ पे 2 वॉवल आ गए ना. 1 वॉवल नहीं है, 2 वॉवल. वो नहीं चलेगा, एक ही वॉवल चलेगा. यहाँ पे दिस इज हाउ द फॉर्म्स चेंज. और ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारे फॉर्म्स पता होना व्हेन यू आर स्टडिंग टेंस. टेंस पढ़ने के लिए हमें ये फॉर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्रीवियसली ऑल्सो आई हैड इन्फॉर्म यू कि जब हम वर्ब्स पढ़ रहे थे, गेट एटलीस्ट 100 सच नॉर्मल वर्ब्स, नॉर्मल रूटीन वर्ब्स जो होते हैं एटलीस्ट 100 पिकअप कीजिए. आपको इजीली गूगल में मिलेंगे. एंड लर्न देयर फॉर्म्स. उनके V1, V2, V3 फॉर्म्स ज़रूर लर्न कीजिए. उसके बगैर वी कैन नॉट मूव अहेड इन टेंस. एंड इफ़ यू वुड नॉट कंप्लीट टेंस थरली देन वी कैन नॉट मूव अहेड फॉर एनी अदर टॉपिक ऑफ इंग्लिश. लेट मी मेक इट क्लियर टू यू. अगर हम टेंस को थरो नहीं करेंगे तो हम उसके आगे कोई भी चैप्टर नहीं कर सकते. और टेंस थरो करने के लिए ये आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है? तो प्लीज़ गेट सम टाइम फ्रॉम योर शेड्यूल एंड प्रिपेयर योरसेल्फ विथ ऑल दिस. नाउ विथ दिस आई एम गिविंग यू ऑक्सिलरीज. अब हम ऑक्सिलरीज पे आ रहे हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि वो फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है टेंस का. उसके बगैर टेंस अधूरा है. हमें टेंस करना है तो हमें ऑक्सिलरी करना होगा. ठीक है? लास्ट टाइम वी हैड स्टडीड के वर्ब इज इनटू 2 अगेन, action and auxiliaries. Auxiliary again are into 2. Action अभी भी हमने देख लिए. Auxiliary again into 2. Primary and modals. Modals हम separately करने वाले हैं. That's a separate chapter altogether. Primary auxiliary की तरफ चलते हैं. Primary auxiliary again are into 3 पैरामीटर्स. ये 3 प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाए जाते हैं ऑन अ वाइडर स्केल. इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहा जाता है ना. प्राइमरी ऑक्सिलरी का काम क्या है, वो हमें क्या मदद करते हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या करेंगे? मैंने बाकी सब एक्स्ट्रा हटा दिया था. प्राइमरी ऑक्सिलरी का क्या पर्पस है? उनका पर्पस है वो हमें टेंस बताते हैं, सिंगुलर प्लूरल बताते हैं,
टेंस बताएंगे, सिंगुलर प्लूरल बताएंगे, बाकी का जो काम है वो मोडाल्स करते हैं। तो फिलहाल हमें सिर्फ इतना समझना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं, दे आर इन सिंपल वर्ड्स, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उनको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। आपने ये सुना होगा, अगर ऑक्सिलरी नहीं भी पढ़ा है कभी तो हेल्पिंग वर्ब्स तो भी एटलीस्ट आपने सुना होगा। ये हमें टेंस और सिंगुलैरिटी और प्लुरैलिटी के बारे में बताते हैं। सो नाउ दीज थ्री आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज, बट हमारे पास तीन वेरिएशंस हैं। वी हैव पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारे पास तीन वेरिएशंस हैं। तीनों वेरिएशंस में सिर्फ बी नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ हैव नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ डू नहीं लिखा जा सकता। तो क्या अगर हम सिर्फ ये वर्ड्स नहीं लिख सकते तीनों में भी, ये किसी एक में आएंगे, बी फ्यूचर में आएगा, हैव प्रेजेंट में आएगा और फ्यूचर में आएगा, डू प्रेजेंट में आएगा, तो पास्ट का क्या हुआ, फ्यूचर के बाकी के इसका क्या हुआ। ये समझने के लिए हमें ये देखना है कि दिस अगेन गेट्स फर्दर डिवाइडेड, इसको भी अंदर से डिवीजन दिया है ताकि तीनों भी वेरिएशंस को प्रॉपर जस्टिफिकेशन मिल सके। तो बी के वेरिएशंस कौन से हैं, बी के सब टाइप्स क्या है, बीन, इज, एम, आर, was, were, ये सब के सब बी के अंडर आते हैं। ठीक है, बी के फैमिली मेंबर्स हैं। हैव का हैज, हैड, ये हैव के फैमिली मेंबर्स हैं। डू का डिड, डस। ठीक है, इस तरीके से हर एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, वो तो तीन ही है, लेकिन हमारे पास तीन वेरिएशंस होने की वजह से हमें उनको इन डेप्थ समझने की ज़रूरत है। वी हैव टू अंडरस्टैंड देम इन डेप्थ, एंड बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड देम इन डेप्थ, वी नीड व्हाट, वी नीड वैरायटी विद अस, वी नीड वैरायटी विद अस, वी नीड सब टाइप्स ऑफ दीज थ्री जो हमने यहाँ पे किया। ठीक है, सो ये आप लोग प्लीज कॉपी कर लीजिए। I request everyone to copy it down. I hope everyone has copied. Erase कर दूँ फिर मैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये और इससे पहले कि हमारे वर्क फॉर्म्स जो हैं, ये दोनों भी चीज़ें हमें टेंस में याद रखनी है, काम आएंगी, और ये आएंगी ही आएंगी काम। ठीक है, now I am giving you one more small table before we start with actual tense. हमारे पास तीन वेरिएशन है, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। ठीक है, तीन वेरिएशन है। इन तीनों के अंदर जो हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरीज यूज करने वाले हैं, मैं उसका आपको एक लेआउट देना चाहती हूँ, एक रफ लेआउट, ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। सिंगुलर, कौन से ऐसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं जो इनमें यूज होते हैं फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। पास्ट में यूज होगा was, had, पास्ट में ही प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगा had, were, had दोनों में यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, प्रेजेंट का सेंटेंस है और उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यूज करेंगे इज, एंड हैज, whereas, और हाँ ये डस, यहाँ पे डिड भी लिखना है, दैट इज ऑल्सो यूज्ड। प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो कौन से आएंगे, हैव, आर एंड डू। फ्यूचर, फ्यूचर में इसमें आएगा बी
and then have. इसमें will और shall आता है, वो इसमें नहीं लिखना है because that is only for the reference of future. So be and have, and then over here you have again be and have. So ये टेबल भी अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं तो आपके लिए टेंस काफ़ी इजी जाएगा, क्योंकि टेंस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री थिंग्स जो मैंने आपको बताया अभी तक. सबसे पहला है हमारा वर्ब फॉर्म, दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, तीसरा है कौन से प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन से वेरिएशन के साथ कैसे मैचअप करना है, कौन सा प्राइमरी के लिए लिखना है, कौन सा सिंगुलर के लिए लिखना है, कौन सा प्लूरल के लिए लिखना है. सो ऑल दीज थ्री थिंग्स यू नीड टू मेमोराइज. एक बार ये तीनों चीज़ें आपने लर्न कर ली, मैं लर्निंग की बात कर रही हूँ, लिटरली अगर आपने उनको लर्न कर लिया, मेमोराइज कर लिया, तब फिर उसे कैसे प्लेस करना है टेंस में, एग्जैक्टली एक सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम होगा, ये तीन चीज़ें यूज़ करके ये हमें सिर्फ देखना बच गया. सो यहाँ तक हमारा टेंस का 50% जर्नी कंप्लीट हुई. अगेन आई वुड से हमारे टेंस की 50% जर्नी यहाँ कंप्लीट हुई, जहाँ पे हमने उसका रॉ मटेरियल देख लिया. अभी तक हमें समझ में आया कि हमारे पास चाय पत्ती है, हमारे पास ये है व्हाट डू यू कॉल इट एज शुगर है, और दूध है और पानी. ये चीज़ें अभी तक हमने रॉ मटेरियल देख ली. अब हमें एक्चुअली में समझना है कि स्टेप्स क्या है चाय बनाने के, और साथ में कौन सी चीज़ कितनी प्रपोर्शन में कब डालते इनटू द यूटेंसिल, ताकि प्रॉपर टेस्टी टी बने. ठीक है ना. उसके ऊपर अदरक और लौंग भी हम डाल सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे. पहले हमें ये बेसिक रिसोर्सेज जो है उन्हें कब और कितने प्रपोर्शन में डालना है ये समझना ज़रूरी है. ठीक है. सो मैं इरेज दिस स्टफ नाउ. सबने कॉपी कर लिया है, एवरीवन हैज नोटेड डाउन, दैट्स ग्रेट. चलिए फिर आगे चलते हैं. अब हम अपने मेन वेरिएशन पे आए हैं. सबसे पहले है पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर. वंस वी आर नोन के इतने तीन वेरिएशंस हैं, हमें एड ऑन इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए होती है कि एज आई टोल्ड यू, पास्ट मतलब एग्जैक्टली कौन सा पास्ट. इफ आई से दैट आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड अ फुटबॉल मैच, मतलब मैं 2 मिनट पहले खेल कर आई हूँ, या मुझे खेल के 2 घंटे हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, क्या टाइम पीरियड है, कौन सा पास्ट. व्हेन आई से 1 मिनट पहले से मेरा पास्ट शुरू हो चुका था, मतलब इफ़ यू काउंट इट, तो 1 मिनट पहले से मेरा पास्ट शुरू होता है इससे लेके तो जब धरती बनी थी. इफ दिस कंप्लीट इज पास्ट, हाउ विल आई नो एग्जैक्टली मैं कौन से टाइम पीरियड के बारे में बात कर रही हूँ. ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये बात समझ में नहीं आती, और इसकी वजह से देन द पर्सन गेट्स इनटू अ रॉन्ग ट्रैक ऑफ टेंस. तो ऐसा ना हो. प्रॉपर पास्ट कौन सा है, प्रॉपर प्रेजेंट कौन सा है, प्रॉपर फ्यूचर कौन सा है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है. और इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास फर्दर वेरिएशंस हैं, फर्दर सब टाइप्स हैं.
देयर इज नो प्लेस एट द बॉटम विच विल बी विजिबल टू यू। तो फिलहाल ये 3 देखते हैं, उसके बाद द फोर्थ वन आई विल गिव यू। ये 4 जो है, ये 4 सबटाइप्स दिए गए हैं ताकि हमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो ये समझने में कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट एग्जैक्टली विच पास्ट, when I am talking about present exactly which time phase of the present. For me today morning and till the time it is night today, for me it is present, मैं उसको present कह सकती हूँ। लेकिन इस पूरे present के 24 hours में से कौन से phase की मैं exactly बात कर रही हूँ, I don't know। future मतलब अभी से 1 मिनट के बाद से लेते हुए तो future could be till the end of this earth। तो कौन से फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ? Am I talking about the future, the near future, or am I talking about the future little later after 2 to 3 months? क्या exactly कब, कौन से फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ? This should be known to me। तो ये minute टाइम फ्रेम समझने के लिए, ये टाइम पीरियड समझने के लिए I have to use these subtypes। अब पहले इन सबटाइप्स का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। ये सबटाइप्स तीनों के लिए ना, तीनों के लिए सेम है, तीनों के लिए सेम है। लेट मी टेल यू, तीनों के लिए सिंपल सबटाइप है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है एंड इवन परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तीनों के लिए कोई भी फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि तीनों में आने के बाद when you study simple, the subtype simple is studied for all 3 variations, उसमें कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। क्या बदलेगा? हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो बदल जाएंगी जब वो एक वेरिएशन से दूसरे वेरिएशन में जाएगा। सिंपल फॉर्म जो है, these are forms, ये फॉर्म्स जब एक से दूसरे टाइप में जाएंगे तब सिर्फ इतना फर्क है कि उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है वो बदलती जाएगी, चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। तो सिंपल पास्ट जो है, सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट या फ्यूचर, इसका मतलब है, या सिंपल इस फॉर्म का सिंपल सा मतलब है, इट्स टॉक्स अबाउट द वर्क विच हैज जस्ट बिगन। काम अभी अभी शुरू हुआ जो है उसे हम लोग सिंपल की कैटेगरी में डालते हैं। आई रिपीट, काम अभी अभी शुरू हुआ है उसी को हम सिंपल की कैटेगरी में डालते हैं। वी वांट टू से कि इसमें काम अभी अभी शुरू हुआ है। तो ये चीज़ समझ लेना है अच्छे से, दैट व्हेन यू से सिंपल, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्क विच हैज जस्ट बिगन। पास्ट में काम शुरू हुआ था, प्रेजेंट में काम शुरू हुआ है, फ्यूचर में काम शुरू होगा। तो जब हम लोग सिंपल इस फॉर्म की बात कर रहे हैं तो इन शॉर्ट हम लोग ये बता रहे हैं कि काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था या प्रेजेंट में शुरू हुआ है या फ्यूचर में शुरू होने वाला है। Okay? This is how the variations are, the 3 variations. Okay? Then you talk about continuous. Continuous का मतलब है ongoing, जैसे मैंने आपको बताया, the name itself gives us the meaning. ongoing, चल रहा है, ongoing, चल रहा है। Okay? It is ongoing. यहाँ पे काम शुरू हुआ, यहाँ पे काम चल रहा है। And perfect means just finished और completed। अभी अभी काम खत्म हुआ। See, I told you previously, it all depends on verbs. काम, action, कर्म। काम शुरू हुआ, मे बी पास्ट में हुआ था, उसके बाद काम पास्ट में चला था, that is continuous। काम खत्म हो गया in the past itself, पास्ट में खत्म हो गया, अभी नहीं, पास्ट में ही ऑलरेडी
खत्म हो चुका है। सेम थिंग फॉर प्रेजेंट, काम शुरू हुआ है, अभी चल रहा है, खत्म हो गया, अभी अभी खत्म हुआ। सेम थिंग फॉर फ्यूचर, काम शुरू हुआ होगा, काम शुरू हो जाएगा, काम चलेगा, काम खत्म हो जाएगा। तो ये मीनिंग्स आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको पैराग्राफ्स आते हैं। हमने कुछ दिन पहले, लास्ट वीक इटसेल्फ वी हैव सॉल्व 2 पेपर्स ऑफ memory based exam. In those 2 papers we had seen that you get eventually you get a very fixed pattern. एक बहुत ही fixed pattern है हमारे टेंस के क्वेश्चन का, and the pattern says you have a passage given. In the passage you have certain blanks. आपको क्या करना है, वो blank के अंदर proper tense fit in करना है वर्ड का। तो वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के कौन से टाइप्स में है, ये आपको समझना होता है। एंड फॉर दैट दिस मीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेवर ड्रॉप आउट दिस मीनिंग, इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसमें जो चौथा है, आई टेल यू दैट ऑल्सो, उसका भी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। आई पुट इट अप, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है। दैट इज नेम्ड एज जगह विजिबल है नहीं, ठीक है। इट इज नेम्ड एज परफेक्ट कंटीन्यूअस। इट इज नेम्ड एज परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है that when you are talking about the work which has just started, the same work is going on, then the work has come to an end. इस तरीके से हम ये तीनों में उसे काम का ड्यूरेशन, काम का टाइम फेज डिवाइड कर चुके हैं। Now when you talk about perfect continuous, what do you think it would be here? यहाँ पे हमारा काम शुरू हुआ, चला, खत्म हो गया। तो ये क्या बता रहा है? What is the importance of perfect continuous? Can anyone tell me? Perfect continuous का क्या importance होगा? Come on, give me a guess, everyone. आपको जो सही लगता है आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि you have to give me a bookish language या only the definition from the book should come to me. नहीं, ऐसा नहीं है। You can give me your own answer. What do you think? यहाँ पे काम शुरू हुआ, यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे काम खत्म हुआ, तो फिर वहाँ पे क्या है? What's there? Okay, continuing in past, but then that is applicable to all three. तीनों भी टेंस को वो applicable है। तो अगर हम सिर्फ पास्ट की बात करेंगे तो बाकी दो का क्या? If you are talking about only past, then what about present and future? मैंने अभी भी आपको कहा था कि ये चारों भी फॉर्म्स तीनों के लिए। ओके, वेरी गुड खुशी। What was going on for a long time? Very good मंजरी। आप दोनों ने आधा सही बोला है, उसके आगे का सही बोलिए। काम चलते आ रहा है, बिल्कुल सही। वो सिंस वाला जो होता है मामला, यू आर सेइंग दैट, गुड, अच्छी बात है, आप लोग ट्राई कर रहे हो। ओके, काम चलते आ रहा है मतलब इट वॉज गोइंग ऑन सिंस अ लॉन्ग टाइम, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी वो काम चल नहीं रहा है। इट हैज़ कम टू एन एंड, और वो काम खत्म होके भी बहुत समय हो चुका है, बहुत समय बीत चुका है कि काम खत्म भी हो गया, इसीलिए परफेक्ट दिया है वहाँ पर। कंटिन्यूस का आपने बहुत ही अच्छे से मीनिंग कैप्चर किया कि कंटिन्यूस का मतलब है कि गोइंग ऑन। तो
काम चल रहा था और बहुत लंबे समय तक चल रहा था, वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे परफेक्ट भी दिया है, इसका मतलब ये है कि काम खत्म हुआ। कब खत्म हुआ? बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। ये समझिएगा, आपका एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, हैव बीन वर्किंग। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। सबको ये बात क्लियर हो गई? गॉट फिनिश एंड इट इज बीन लॉन्ग, इट हैज गॉट ओवर। यस, करेक्ट मैंटू। तो ये इसका मीनिंग है। अब हमारे ये चारों के चारों टाइप्स के यहाँ पे लिखकर चाहिए क्या मीनिंग, या एवरीवन कैन राइट इट बाय देयर ओन आई गेस फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चारों भी टाइप्स हमने समझ लिए। इनमें कुछ प्रॉब्लम है, ये टाइप्स में कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं है, तो प्लीज आस्क मी इमीडिएटली इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर इन दिस, क्योंकि इनका मीनिंग आपको बहुत अच्छे से यूज में आने वाला है। You will have a, you can say an extensive use of these forms. Tense का मतलब और meaning is that. Tense का मतलब past, present, future पढ़ना नहीं है. Let me tell you that. वो सिर्फ प्राइमरी में होता था, फर्स्ट या सेकेंड में वो भी। थर्ड स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आपको ये टाइप्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेंस का रियल मीनिंग ही ये फॉर्म्स हैं। और बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्म्स कंफ्यूजिंग लगते हैं या उन्हें टेंस ही बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो उसका एक सिंपल रीज़न यही है कि अभी तक हमने जो भी उसका बेस देखा, पहली चीज़ तो वो बेस क्लियर नहीं होती। यही नहीं पता होता है कि टेंस की वैरायटीज़ क्या है, टेंस के रिसोर्सेज क्या है, टेंस को समझने के लिए कौन से एस्पेक्ट्स समझने हैं, ये पता नहीं होता है। पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें ये पता नहीं होता है कि ये फॉर्म्स का मतलब क्या है, इनको क्यों डाला गया, लॉजिक क्या था इसके पीछे, या कोई लॉजिक ही नहीं है, सिर्फ डाला है, सो वी हैव टू स्टडी इट। तो इट बिकम्स अ बर्डन अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो हमेशा याद रखिए, अगर कभी भी आपको टेंस पढ़ना है तो सबसे पहले जो बेस मैंने आपको दिए हैं वो 3 रिसोर्सेज अपने दिमाग में रखिए, मेमोराइज ज़रूर कीजिए। हर चीज़ लॉजिक से जुड़ी तो है, पर फिर भी उस चीज़ को हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए न्यू है। जस्ट लाइक A to Z हमने मेमोराइज किया, सेम थिंग, उसमें भी लॉजिक था, A for apple and B for ball, we knew that कि ये वो लेटर्स हैं जिससे वर्ड्स बनेंगे, हमें ये लॉजिक पता चल गया था, फिर भी हमें उसको मेमोराइज करना ही पड़ा। तो हर चीज़ जो लॉजिकल होती है उसे सिर्फ समझ लेने से काम नहीं होता है, उसे मेमोराइज भी करना पड़ता है, बिकॉज इट्स यूसेज इज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। लेट मी टेल यू, एज फार एज यू आर रिलेटेड विथ योर जॉब एंड राइटिंग एंड इंग्लिश, तब तक आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है। नो मैटर वेरेवर यू गो इनटू योर फील्ड्स, whichever fields, whichever job profile or whichever profession or maybe business, हर जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, more or less in all areas। तो इसीलिए इस चीज़ को सीरियसली पढ़ें और यही टाइम है आप इसको सीख सकते हो थरली विथ कंप्लीट डेडिकेशन। इसके बाद हर बार मौका नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज़ हर बार नहीं मिलती। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में टेंस का मतलब क्या है वो पढ़ा। हमने ये देखा कि टेंस टाइम पीरियड है, इट इज़ रिलेटेड टू एक्शन, इट इज़ रिलेटेड टू वर्ब्स। उसके बाद हमने 3 अलग अलग रिसोर्स सेट देखे। सबसे पहले हमने वर्ब फॉर्म्स देखे जो V1 से लेके V4 तक है, और उसके कुछ आपको नॉर्मल रूटीन की जितने वर्ब्स हम यूज़ करते हैं उनके वर्ब फॉर्म्स करने का सजेशन है मेरी तरफ से। मेमोराइज कीजिए, लर्न कीजिए। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड रिसोर्स सेट जो देखा, दैट वाज रिलेटेड टू वर्ब्स इन द सेकेंड फॉर्म, दैट इज ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी के अंदर हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी देखे, मोडाल्स अभी हमारे बाकी हैं, वो हम सेपरेटली देखेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी के 3 फॉर्म्स हैं, वो 3 फॉर्म्स इटसेल्फ आर नॉट इनफ, इसलिए उसके सब टाइप्स भी हमने देखे। वो सब टाइप्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएशंस हैं ना टेंस में, इसलिए।
फिर हमने तीसरा रिसोर्स सेट जो देखा वो उन्हीं प्राइमरी ऑक्सिलरीज को सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे यूज़ किया जाएगा इन ऑल 3 वेरिएशंस या टेंस, वो हमने देखा। उसके बाद हम लोग मेन एरिया पे आए जहाँ पे हमने फॉर्म्स देखे कि हमारे पास टेंस को आगे सब डिवाइड किया गया है इनटू दीज 4 फॉर्म्स, इनके मीनिंग्स देखे। ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इन सब में कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ टेल मी राइट नाउ। अपने चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं ताकि हम लोग उसे क्लियर कर सकें। आज ही नहीं, आप मुझे कल भी इसके बारे में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो एनीथिंग विच इज़ नॉट क्लियर प्लीज़ आस्क मी इन द चैट बॉक्स। ऑल क्लियर? नो डाउट्स? ओके, ग्रेट देन। फिर आज हम अपना आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। इफ स्टिल यू हैव अ क्वेरी आफ्टर यू गो थ्रू टुडेज मटेरियल देन यू कैन आस्क मी टुमारो। सो सी यू टुमारो विथ टेंस once again, and it's not tenses, it is tense. Thank you so much. Have a great evening to all.